Hello everyone, welcome back to the Mark Dasak. As you know, we are doing the UPSC Geoscientist Prelims GS paper of 2025, and in this series we are done with the two episode. This is the third episode, and probably we will try that it will be the last episode of this series. So in this we have done with the 115 question one, है ना? And we skip the numerical questions for the last, and in this session we will try to do all the numericals, and also with the remaining portion of the question we will do in this session. So we have done 105 questions in last two episodes. In this third episode we will move toward the 106th question. This question says the Purvodaya initiative under the Union budget of 2024-25 include which one of the following states? So this initiative can be asked in your CDS as well as in your CAPF examination, because in upcoming session you will get to know that how these examination are interlinked with each other. You will find the direct repetition of questions from CAPF to CDS to C, that is geoscientist examination, and from geoscientist to the both CDS and CAPF. So in upcoming days you will find that is a direct correlation between these examination. Okay, we will try to do the CSC paper also, so don't worry. Okay, so 106th question says Purvodaya initiative under the Union budget of 2024-25 include which one of the following state? So here Purvodaya matlab eastern part. So if we go with the basic knowledge in the eastern part, okay, part of the country, which state will be in the eastern part of the country? So here you will find that Bihar first, then after the Jharkhand, then Jharkhand के पास में ओडिशा, then ओडिशा के पास में ही ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, है ना. But if you find the Andhra Pradesh in the southern part, it's a southern coastal state, so Andhra Pradesh will not be part of this Purvodaya initiative. So here option 5 will be cut it, है ना. So here option A will be the correct option. Okay, move toward the 106th questions. It says consider the following statement with reference to the presidential election of the USA. US के जो presidential elections है उनके reference में कौन सा correct option है? Okay, so first says California was the largest allocation of votes in the election council, electoral college. So yes, definitely California के पास largest allocation है votes का. Okay. Second says in 2016 Hillary Clinton won more percentage of popular votes than Donald Trump. Okay, yes, ये भी सही है ना. Third says the presidential candidate can't win an election without winning highest percentage of popular votes. Yes, this is also correct. So here you will find option C will be going to be the correct option. Okay, and this is also you can do with our that basic concept that if there are three statement, you have to go with all the three option as incorrect. You may find there may be one or two questions in this strategy will going to be wrong, but mostly when it will go with the score, you will always find there is a net positive in that. Okay, so next question says which or who among the following has been selected for Nobel Peace Prize 2024? So Nobel Peace Prize प्राइज के लिए किसको नॉमिनेट किया गया था, है ना, सेलेक्ट किया गया था. सो हियर this is factual questions, है ना. Here you will find option D will be the correct option, Alice Bielestesky, है ना, Bielestesky. Okay, if I may please pardon me if I am pronouncing the name wrong. Okay, so option D will be the correct option. Okay, let's move toward 109th question. It says the 19th East Asia Summit was held in, कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था पेनोम पेन में, है ना. So 110th question says the host country of the inaugural Kho-Kho World Cup 2025 is लाइक है ना, ये जॉइंट इनिशिएटिव था, जॉइंटली मतलब कि होस्टेड था ये इंडिया और बांग्लादेश के बारे में. खो-खो वॉज लाइक है ना, खो-खो वर्ल्ड कप वॉज इन न्यूज़ इन द रिसेंट. सो यू हैव टू रीड अबाउट द खो-खो वर्ल्ड कप 2025. इसमें कौन था जो है ना, मतलब कि विनर रहा, प्लस ये कहाँ कहाँ हुआ था, है ना. यू हैव टू हैव द बेसिक नॉलेज. आई हैव गट फीलिंग कि दिस विल बी आस्क इन योर CAPF और CDS एग्जामिनेशन दैट विल बी हेल्ड इन अपकमिंग मंथ्स. ओके, so 111th question says the Species Survival Commission of International Union for Conservation of Nature conferred the Henry Michel Award 2024 upon, ये किसके ऊपर किया गया था? ये था
बीबाब कुमार तालुकदार, ये इनको मिला था. ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो इन क्वेश्चन नंबर 112 it says which one of the following films was awarded the National Film Award 2024 in the category of best feature film promoting national social and environmental values. कौन सी मूवी थी जिनको मतलब कि है ना बेस्ट फीचर फिल्म इन प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज. सो ये थी कच्छ एक्सप्रेस, इनको मिला था अभी 2024 वाला. ओके, क्वेश्चन नंबर 113 says Naseem Al Bahr held in October 2024 was a joint maritime exercise between navies of, ये बेसिकली इंडियन नेवीज और ओमान नेवीज के बारे में, ओमान नेवीज के बीच में होता है. नसीम अल बहर डेफिनेटली डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर योर CDS एंड CAPF एग्जामिनेशन. आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड नोट डाउन अबाउट ऑल द डिटेल्स इन दिस पेपर ओनली अबाउट द नसीम अल बहर एक्सरसाइज दैट वॉज हेल्ड बिटवीन, किन के बीच में हुआ था? मेरी टाइम एक्सरसाइज है, किन के बीच में हुआ था? इंडियन नेवी और ओमान नेवी के बीच में. ओके, सो हियर लेट्स मूव टुवर्ड द 114 क्वेश्चन विच सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द क्वाड लीडर्स समिट ऑफ 2024. ये कहाँ पे हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था. ओके, ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था. ओके, सो दीज आर फैक्चुअल करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस. यू हैव टू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. करंट अफेयर वैल्यू इज इंक्रीज, मतलब कि करंट अफेयर पोर्शन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. And now you have seen the trend that there is like a mixture of current affair plus conceptual knowledge in a question. So you have to have the both knowledge for going with the question. Okay, so 115 question says that in Wajanchal Forest Division tribal communities members are being engaged in the removal of invasive species from the forest. Identified कौन सी ट्राइब थी, है ना? Identify the tribe. तो यहाँ पे थी एक खद्दर ट्राइब. खद्दर ट्राइब थी जो कि मतलब इन्वेसिव स्पीसीज को हटा रही है फॉरेस्ट से, है ना? सो हियर 116 क्वेश्चन सेज द नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज प्रपोज टू बी डेवलप्ड एट द विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस. ये कहाँ पे प्रपोज किया था, कहाँ पे डेवलप होगा? नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. सो ये बेसिकली लोथल में होगा. लोथल आई थिंक इन गुजरात, है ना? एंड इट इज वन ऑफ द हरप्पन साइट्स इफ यू रिमेंबर. So question number 117 says which one of the following statement about the Telemanas app is correct. कौन सा Telemanas app के लिए correct है? तो first A says it was launched by Ministry of Home Affairs, okay, of Government of India for the safety of girl child. नहीं. Okay, so let's move toward the next. Second, parent of children under 14 years can report through this app directly to the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India about nutritional deficiency for their children. So here you will find that there is a conflict between ministries, like ना there is ambiguity between the ministries. इसमें होम मिनिस्ट्री दिखाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिखाया गया. थर्ड says it was a mobile app for providing the support for mental health issues. Okay. Fourth says this app has been launched by the Ministry of Education. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ होलिस्टिक सर्कुलर डेवलपमेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन. सो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 मिनिस्ट्रीज का जिक्र है ना? सो यू विल फाइंड कि तीनों ही गलत है, तीनों मिनिस्ट्री ही गलत है. मतलब कि मिनिस्ट्री तो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, बट जो इसमें दे रखा है ना कि पेरेंट्स ऑफ कैन रिपोर्टेड थ्रू दिस एप डायरेक्टली टू द मिनिस्ट्री, नहीं डायरेक्टली मिनिस्ट्री को क्यों करेगा? ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट इन दिस. इट इज़ ए मोबाइल ऐप फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज़. सो ये मोबाइल ऐप है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. ओके, सो ये यहाँ पे क्वेश्चन अभी 2024 ना फेब में आ गया ना ये वाला, तो ये अभी मतलब कि हायर चांसेस है कि इसके बारे में, मतलब कि इस स्कीम के बारे में कुछ ना कुछ और डिटेल्स में आ जाए. सो प्लीज़ रीड दिस स्कीम. ओके, टेलीमानस स्कीम. ओके, 118 क्वेश्चन सेज विच with regarding to the finding of the second All India Rural Finance Inclusion Survey of NABARD, which of the following statement is or are correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मतलब कि नाबार्ड के जो सर्वे हुआ था अभी उसमें? तो हियर फर्स्ट सेज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ रूरल हाउस होल्ड सॉ इन राइज ओवर ए 5 years period from 2016-17 to 2021-22. Yeah, definitely there is a rise in the income in the last 5 years. Definitely it is correct. Second says the average monthly expenditure of the rural households saw a decline over the 5 years period from 2016-17 to 2021-22. So here you will find कि decline है ना in the
एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर, है ना. सो यू हैव फाइंड कि मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि ये है ना इंटरनेट वगैरह आए तो शॉपिंग वगैरह हो गई ईजी, है ना. और जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, है ना. पीपल ट्राई टू मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल. सो यहाँ पे ये रूरल हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर डिक्रीज नहीं होगा, ये इंक्रीज होगा, है ना. सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. सो हियर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके. 119 क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, है ना. विच ऑफ द अबाउ स्टेट सेलिब्रेट देयर फाउंडेशन डे ऑन नवंबर 1st. नवंबर 1st को कौन सा स्टेट अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है. सो हियर यू विल फाइंड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना. सॉरी, द स्टेटमेंट ए एंड बी करेक्ट. फर्स्ट इज केरला, सेकंड इज कर्नाटका. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके. 120th question and last question of this paper says which one of the following statement about the Kaveri meat program is correct. Okay, Kaveri meat program से related कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना. फर्स्ट है it was the first cultural event that held under the अमृत परंपरा सीरीज. नहीं, फर्स्ट तो नहीं है ये वाला, तो फर्स्ट इज रॉन्ग. इट इज ए रिवर वाटर लिंकिंग प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है, रिवर लिंकिंग प्रोग्राम है. ओके. सो हियर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके. So now it's time to move towards the numericals. In numericals, I found कि some numericals are not made for your examination, like for your CDS or that CAPF examination, because they are extremely going to be tough. So I want कि जो आपके लिए important है, जो भी है ना, तो वो वाला करेंगे, and जो important नहीं लगेगा then we will skip that. Okay. So here the first says an electromagnetic wave with its magnetic field B is equal to 0.3 cos bracket ky minus 10 to the power 8 t into I cap Tesla is propagating in a non-magnetic dielectric medium of refractive index 2. The wavelength of wave is. So यहाँ पे क्या पूछी है? wavelength पूछी है ना. So here if you remember the formula, then that says B is equal to B0 B naught cos kx minus omega t is the equation. ओके. सो यहाँ पे आप अगर इस इक्वेशंस को मतलब कि आप देखोगे तो यहाँ पे B नोट इज इक्वल टू क्या होगा? B नोट इज इक्वल टू 0.3. ओके. omega is equal to going to be 10 to the power 8. ओके. सो what wavelength पूछी है ना, wavelength को किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से करते हैं. सो हियर यू विल फाइंड दैट वेयर यहाँ पे k होता है ना, k इज इक्वल टू ये 2 पाई अपॉन लेमडा होता है. ओके. एंड हियर यू विल फाइंड, ओके, लेट मी ट्राई टू हैव द ब्लैंक. Okay. So here we will explain it clearly. So the question says B is equal to B0 cos, है ना, kx minus omega t. ये होती है रियल इक्वेशन. हमें क्या दे रखी है? B is equal to 0.3 cos kx कुछ भी लिखो, ओमेगा की जगह 10 to the power 8 t I cap, है ना. यहाँ पे आई केप है. ओके. सो हियर इफ यू कंपेयर दिस, है ना, यू विल फाइंड B0 इज इक्वल टू 0.3 एंड ओमेगा इज गोइंग टू बी 10 to the power 8, है ना. सो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, देन k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा. ओके. एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी f, है ना. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दे रखी है 10 to the power 8 रेडियस पर सेकेंड, है ना. एंड स्पीड ऑफ, ओके, सो द मीडियम दे रखी है. सो फर्स्ट वी विल फाउंड द डायरेक्टली एक्सप्रेशन वेयर द के दे रखा है, आपने ओमेगा दे रखा है. तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सबसे पहले तो वो निकालेंगे. स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है ना, ये v इज इक्वल टू जो स्पीड की लाइट मतलब कि जो लाइट की स्पीड होती है, जो एक है ना
वैक्यूम में होती है ना, अपॉन एन जो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देर का है ना, तो ये होगी 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये हो गया 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8, है ना। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स, लेट मी जस्ट, इसको मिटाना पड़ेगा, कुछ पार्ट मिटा देते हैं इसमें से स्टार्टिंग वाला। ओके, सो दैट वी कैन डू इट इन ए गुड पोर्शन। ओके, इस पर स्क्रॉल करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा नीचे, इट इज़ वेरी वेरी बेसिक, can't do nothing about this. Okay, so here now we find the v का आ गया हमारे पास, तो हमें क्या मतलब कि हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट, हमें मतलब कि पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू ये कितना होगा, ओमेगा अपॉन के हो जाएगा, है ना। सो ये वाला आगे चल के क्या होगा, के इज इक्वल टू हमें ओमेगा अपॉन वी हो जाएगा, है ना। सो ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 8 अपॉन 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8, ओके, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/3, है ना। इसके बाद में चलेंगे तो वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन के हो जाएगा, है ना। 2 पाई के का वैल्यू क्या आ गया 2/3, सो लेमडा इज इक्वल टू ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 पाई हो जाएगा। सो लेमडा की वैल्यू आ गई 3 पाई। सो इफ वी go to the question, then option B will be the correct option. Okay, let's erase and let's move towards the next question. Next question is also from the class 12th physics. It says a spherical conductor of radius A has a cavity of radius B at its center such that A बड़ा है B से, a positive charge Q is placed at the center. Okay, the electric field in this region is this in this region, है ना, respectively क्या होगा। So here you will find I think this type of questions will not be asked in your CDS or CAPF examination. You may find this type of questions in your NDA examination, है ना। So here basic concept is E is equal to होता है KQ अपॉन ओके, E is equal to होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, है ना। यहाँ के को लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। सो यहाँ पे अगर आप है ना इसकी वैल्यू देखोगे तो ये आ जाएगी 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 9, ये 9 आ जाएगी, है ना। फिर क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो नहीं आई थिंक ये होगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे अगर आप आंसर के हिसाब से देखोगे, सो यहाँ पे आप मतलब कि जो होता है ना द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, हमें रीजन कौन से दे रखे है बी, एक तो कौन सा दे रखा है बी, जब आर का ना मतलब कि जब मतलब कि ए से मतलब आर की वैल्यू बी से तो ज़्यादा हो, है ना, और ए से कम हो, है ना, तो उस टाइम पे जो अंदर वाला पार्ट है वहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड जब आर की वैल्यू जब ए से बड़ी हो तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर। ओके, सो हियर 0 एंड okay, so here if you go with the flow then you will, so here if you go with the flow then you will find option C is going to be correct option. Okay, these type of questions are from class 12th. Okay, and this is also from class I think 12th only, है ना। तो ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का कुछ कॉन्सेप्ट है, लेट्स रीड इट। ये होता है फॉर ए गिवन सिस्टम ऑफ रेसिस्टेंस रेसिस्टर हैविंग रेसिस्टेंस आर ये 2R ये R0 एंड 2R shown in the figure, what will be value of resistance of the resistor R0 where there is no current in the galvanometer G। so basically एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें क्या होता है ना R1 इज इक्वल टू R1 R2 इज इक्वल टू R3 R4, फिर ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसमें कोई भी
वैल्यू नहीं आती है, जीरो हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यूज़ रख लो, R1 इज इक्वल टू ये वाला R हो गया अपॉन ये 2R हो गया इज इक्वल टू 2R अपॉन R0। सो हियर इट विल बी 1 अपॉन 2R अपॉन R, है ना। सो हियर R0 इज इक्वल टू 2 into 2R, that is R0 is equal to 4R. So option D will be going to be correct. Okay, तो इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, मैं जितना करवा रहा हूँ उतना कर लो, बस काफ़ी है। अगर नहीं करना तो यू कैन स्किप ऑल्सो, है ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 सेज ए साइक्लोट्रॉन हैज़ एन ऑसिलेटर frequency of 12 into 10 to the power 6 hertz and d radius of 21 inches. The value of the magnetic induction needed to accelerate a deuteron और मास दे रखा है, चार्ज ये दे रखा है, कितना टेस्ला होगा, है ना। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है B इज इक्वल टू, है ना, Q पाई ओके M F अपॉन Q, है ना। सो इसको ब्लैंक स्लाइड पे करें तो हियर यू विल फाइंड B इज इक्वल टू 2 पाई M F अपॉन Q, है ना। सो हियर एज इन द इक्वेशन सेड F इज इक्वल टू कितना है 12 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, है ना। एंड M इज इक्वल टू कितना दे रखा है ये 3.34 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, है ना, ये वेट दे रखा है। ओके, क्यों कितना है मास दे रखा है। ओके, क्यों इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम दे रखा है ना। सो लेट्स पुट द वैल्यूज हियर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, देन M की वैल्यू कितनी है ये 12 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया, देन आफ्टर कितनी ये नहीं ये फ्रीक्वेंसी हो गई, M की वैल्यू हो गई 3.34 इंटू 10 टू द पावर -27 अपॉन क्यों कितना हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, है ना। सो लास्ट में मतलब कि कट पट के ये आ जाएगा B इज इक्वल टू आप कर लेना 1.5 नहीं सॉरी ये हो गया 157.14 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला, है ना। सो इसको अगर आप देखोगे तो ये लास्ट में बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, एक मिनट आपको पहले उसमें ऑप्शंस में जाके देख लेते हैं क्या बनेगा ये, है ना। सो इट विल बी ये बन जाएगा। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। 7 क्या है, 7 इज ऑल्सो प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, ये भी मतलब कि 12th का ही कॉन्सेप्ट है। साइंस के जो न्यूमेरिकल्स है वो काफ़ी टफ है। आई थिंक यू कैन स्किप दीज न्यूमेरिकल्स, इसको आप स्किप कर सकते हो, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर सीरियस, है ना। हियर द आंसर बता देता हूँ आपको, आंसर विल बी मतलब कि कितना हो जाएगा आप आंसर आप इसका देख लेना। इसका आई थिंक कुछ ऑप्शन सी नॉट श्योर बट इट विल बी गोइंग टू बी इन पॉइंट्स। ओके, सो लेट मी जस्ट सोल्व समथिंग। ओके, इंटू 160 ये कितना हो जाएगा। ओके, यहाँ से 3 हटा यहाँ पे, so it will be basically A, option A will be the I think going to be the right option. Okay, not sure, you have to do the calculations. Okay, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ ऐसा ही है जिसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये 12th के बेसिस पे क्वेश्चन आ रखा है ना। सो इनको इसको भी स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 ये लेमोर रेडियस वगैरह है, ये वाला कॉन्सेप्ट करना है आपको। आई डोंट थिंक इट्स मतलब कि कुछ भी अच्छा हो है ये कॉन्सेप्ट, है ना। चलो देख लो, इसमें होता है जैसे क्या दे रखा है हमें, ए 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन मास इतना दे रखा है, चार्ज इतना दे रखा है, इंटस परपेंडिकुलरली इनटू द अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इट्स लेमोर रेडियस क्या होगी, है ना। तो यहाँ पे चार्ज दे रखा है
चार्ज दे रखा है, ओके। एंड क्या पूछ रखा है हमें, ओके, लेमो रेडिएशन वगैरह। सो इसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। सो उसके हिसाब से इफ़ यू आर गोइंग टू सी तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन, मतलब कि हाँ, क्या निकालना पड़ेगा इसमें, आपको वी निकालना पड़ेगा, है ना। सो यू विल फाइंड कि 1/v/mv²। लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्लाइड, ओके। 1/mv² इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 1.6 इंटू 10⁻⁻15 दे रखा है ना। काइनेटिक एनर्जी के बराबर दे रखा है, तो v² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन क्या होगा, m हो जाएगा 9 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻31, ओके। सो हियर it will be going to be v is equal to 5.93 into 10⁻7. If you are from science background and has very good command over the calculations and everything, then you can go with this question. If you don't have the good command over this type of things, I don't suggest you that you should solve this type of questions, okay. So here radius will be Lemore radius, r is going to be mv अपॉन क्यू बी, है ना। सो यहाँ पे m हो जाएगा 9 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 5.93 इंटू 10⁻7 अपॉन ये कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 5 इंटू 10⁻19, है ना। सो हियर after cutting everything you will find r is equal to 6.745. so ऑप्शन कौन सा सी होगा, लेट्स सी, ये ऑप्शन, ओके, ऑप्शन डी will be going to be the correct option, okay. Let's move toward the next question that says that a transmitting antenna has top height of the tower has the height of top of a tower has an height of 32 meter. The height of the receiving antenna is 128 meter. फिर क्या हो गया, what is क्या पूछ रखा है, what is the maximum distance between them for satisfactory communication in line of sight mode. The radius of the earth is 64, okay. So इसमें ये वाला भी है कि इसमें भी मतलब करने में है नहीं, मतलब ये वाला भी है ना। बेसिकली इसमें फॉर्मूला लगेगा, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √2r(h1) हाइट प्लस √2r(h2) वाली हाइट, है ना। सो हियर यू विल फाइंड d इज द मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, r रेडियस हो जाएगा, h1 इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, h2 इज द हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना। सो आप वैल्यूज रखोगे इसमें, सो यू विल फाइंड 2 इंटू r हो गया 6400 एंड h1 कितना हो गया, h1 हो गया 32 हो गया, प्लस 2 इंटू 6400 इंटू ये हो गया ऐसे तो 128 हो गया, है ना। सो हियर इफ़ यू आर गोइंग टू सोल्व दिस यू विल फाइंड, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन के वाइज देख लेते हैं। ऑप्शन आई थिंक कौन सा होगा, ऑप्शन आई थिंक सी विल बी गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन, ओके। और आप चेक कर लेना एक बार, है ना, आप करोगे तब, ओके। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज particular circular radiation 0.2, a particle moves in a circle of radius 0.2 meter, okay. Its linear speed is given by v is equal to 2t, where t is in second, v is in the meter per second. The radius of tangential to radial acceleration at t is equal to 3 second would be, क्या दे रखा है, रेडिएशन पूछ रहे हैं, द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल पूछ रखा है ना। सो रेडियल एक्सीलरेशन इज गिवन बाय, मतलब कि ए आर रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v² अपॉन आर के द्वारा दिया जाता है इसको, है ना। सो इफ़ वी गो विद द स्टेप्स यू विल फाइंड, इसमें होगा मतलब थोड़ा बहुत, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी आस्क इन योर एग्जाम, क्योंकि ये 12th का कॉन्सेप्ट है, आई डोंट थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, बट इफ़ यू रियली वांटेड टू डू गो विद दिस क्वेश्चन द ऑप्शन आई विल गो विद द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके।
I have tried this question. Don't want कि you should try this question because it's very मतलब कि factual regarding the मतलब very related to the class 12th physics. That is not going to be asked in your CDS and CAPF. This asked in geoscientist paper because there is a significant portion of the physics, chemistry and physics portion in geoscientist paper, है ना, in the other papers of geoscientist. Okay. So question number 13 says, which one of the following is the sum of the moments of inertia about a tangential to curved surface of solid cylinder, a solid sphere? The masses and the radii of the both cylinder and the sphere are m and r respectively, है ना. So here basically the cylinder का होता है ना अपने एक्सिस पे. Okay, let's move towards the cylinder का होता है अपने एक्सिस पे, एक्सिस के मास, है ना. तो ये हो गया 1/2 mr स्क्वायर, है ना. इसी प्रकार किसका, ये सॉलिड स्फीयर का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 mr स्क्वायर, है ना. बट हमें किसके बेसिस पे पूछना है ना, पैरेलल टू किसके, मूवमेंट इज इनर्शिया इज अबाउट द मास ऑफ द सेंटर. ओके, सो हमें किसके मतलब कि टेंजेंट के मतलब कि इसमें पूछा है ना कॉन्टेक्स्ट में. सो टेंजेंट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई ये सेंटर में प्लस एम डी स्क्वायर, है ना. जो एक्सेस के होते हैं उसमें एम डी स्क्वायर को जोड़ दिया जाता है ना. सो हियर आई इज इक्वल टू फॉर सिलेंडर इज गोइंग टू बी ये 1/2 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ये 3/2 mr स्क्वायर हो गया. सेकेंड सॉलिड वाले के लिए कितना होगा, ये 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7/5 mr स्क्वायर हो जाएगा, है ना. हमें पूछा क्या है ना, हमें इन दोनों का टोटल पूछा है कि क्या होगा. सो हियर यू विल फाइंड ये 3/2 mr स्क्वायर प्लस 7/5 mr स्क्वायर इज गोइंग टू बी आई थिंक 29.10 mr स्क्वायर. सो ऑप्शन 29 है ना. सो हियर लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन. सो ऑप्शन डी विल बी गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, यहाँ पे हमें पूछा है किसके, रेडी ऑफ द बोथ. ओके, मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया सॉलिड ऑफ द सॉलिड मासेस एंड रेडी स्पेयर ऑफ. ओके, सो हमें मतलब कि जो टेंजेंट के रेस्पेक्टिव में पूछा है, अगर वो उसके एक्सेस के रेस्पेक्ट में पूछा होता तो हमने जो शुरू में डिस्कस किया वो हो जाता. ओके, सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फ्रॉम द opticals, ray optics, but it is also the concept from your class 12th. So let's try to do it. If we find that it is right to discuss this, then we will discuss, otherwise we will leave this. Okay, first is the focal length of a thin lens made of glass of refractive index 1.5 having two centers of curvature C1 and C2 with 15 centimeters and 30 centimeters as radii of curvature respectively would be. So यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो हो जाएगा F1. ओके, 1/f इज इक्वल टू n-1, है ना, 1/r1 minus 1/r2, है ना. So here you will find f is focal length, n is the refractive index of the lens. Okay, r1 is radius of curvature of the first surface, r2 is the radius of curvature of the second surface. So in this n is given as 1.5, है ना. r1 is going to be in minus, that is minus 15. r2 is also going to be in minus, so minus 30, है ना. So if then you try to solve, then you will find that ये हो जाएगा 0.5, यानी कि इसको लिख देते हैं हम 0.5 को क्या लिख देते हैं 1/2, है ना. ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना -1/30, है ना. सो ये कितना हो जाएगा, f is equal to -1/60, 1/f. So f is equal to -60. So minus sign indicates the backward side of that. So it will be f is equal to 60.
is going to be the correct option. Okay, so यहाँ पे हाँ option C will be going to be the correct. Question number 15 says the saturation vaporization of Kelvin, the mass constant P is equal to दे रखा है. Okay, it's not going to be, it's like class 12th concept that is not going to be asked in your examination. Leave that. And question number 17 says the ratio of the क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रोम, है ना, 1 एंगस्ट्रोम दे रखा है, 1 एंगस्ट्रोम. ओके, फ्रॉम द प्रोटॉन, है ना, चार्ज दे रखा है प्लस मास दे रखा है, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन चार्ज दे रखा है एंड मास दे रखा है, वुड बी. तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लास 12th का है. आई डोंट थिंक दिस विल बी गोइंग टू बी आस्क्ड इन बिकॉज दिस जियो साइंटिस्ट पेपर इज हैव सम अमाउंट ऑफ टेक्निकलिटी, दैट इज वाई दिस इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. दिस वाज आस्क्ड इन दैट जियो साइंस पेपर बट नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड, दिस इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ योर क्लास 12th की फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री का पार्ट. ओके, सो now we are done with geoscientist paper in 3 episodes only. That is a big achievements. We tried to be as fast as possible so that we can complete most of the paper before your examination. Okay, so have a nice day. I hope you enjoyed this video and try to share this as much as you can so that everyone get the benefit of these type of sessions. And believe me, this session is going to be a game changer in this field because you will find a lot of like almost 10 questions will be repeated from geoscientist or CDS or CAPF paper in CDS, geoscientist and CSE paper in your CAPF upcoming CAPF 2025 examination, है ना. So that is why I am saying that you should religiously follow this series of previous year papers. Okay, so that is it for today. Goodbye.